اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس حال میں بھی اپنے اس گنہگار بندے کو زندہ رکھا. تو کیا آپ مجھے اس طلسمی قید سے آزاد کروا سکتے ہیں؟ جو کام میں نہیں کر سکتا وہ کام تمہارے وفادار ساتھی کر سکتے ہیں. تو پھر جلدی بتاؤ نا شہزادی تصویر، ہمارے آقا کہاں ہیں؟ ہم وہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سندباد تک ہمیں سے کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا تھا اگر شاہ عمری کی روح آ کر مجھے نہ بتاتی کہ سندباد اصل میں کس مقام پر زمین میں قید ہے. میں اس زمین کو کھود کھود کر سندباد کو نکالوں گا، یا پھر زمین کی کھدائی کرتے کرتے اپنی جان دے دوں گا. نہیں الناصر، یہ ممکن نہیں ہے. تم اپنے آقا سندباد کی طرف اپنی وفاداری اور محبت میں جذباتی ہو کر یہ کہہ رہے ہو، مگر سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدم زاد بغیر کسی طلسمی طاقت کے زمین کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. پھر ہم کیا کریں؟ سندباد کو جزیرہ چکماک کی گہرائیوں میں بے سہارا تو نہیں چھوڑا جا سکتا. کہکشاں، جب میں نے تم سب کی مدد کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے تو یہ کام بھی مجھ کو ہی کرنا ہوگا. اور پھر تم دونوں کو شہزادی تصویر کی رہائی کے لیے جزیرہ خیابان بھی تو جانا ہے. اور پھر تم دونوں کی مدد کے لیے توتن فتنہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا. یقیناً. تو پھر ہم فوراً ہی جزیرہ خیابان کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں بھی جزیرہ چکماک کی طرف چلتی ہوں. ہم سب کی ملاقات دوبارہ وہی ہوگی، سندباد اور شہزادی تصویر کی رہائی کے بعد انشاءاللہ. نواقول نالائق احمق، کہاں ہے سندباد کا جہاز؟ کہاں ہے؟ سردار میں سچ کہہ رہا ہوں سردار، کل رات سندباد کا جہاز اسی جزیرے پر تھا سردار. ہاں سردار، دجال سچ کہہ رہا ہے، قسم سے رات جہاز یہی تھا. خاموش! قسم سے رات جہاز یہی تھا. شراب پی کر رات میں الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہو اور پھر دن کو ان جھوٹے خوابوں کی سچائی کی قسمیں کھاتے ہو. چلے جاؤ میرے سامنے سے، جاؤ منہ کالا کرو اپنا، جاؤ. دلربا، دل تو چاہتا ہے کہ اس لڑکی کی گردن مروڑ ڈالوں، مگر کمبخت کو مار بھی نہیں سکتا. قارون کے خزانے کی کنجی ہے وہ، کنجی. دلربا، مانا کہ سندباد ہم سے بھاگ رہا ہے اور وہ لڑکی بھی بار بار ہمارے ہاتھ آتی ہے، مگر ہر بار وہ چڑیوں کی طرح پھر سے اڑ جاتی ہے. مگر وہ زیادہ دنوں تک میرے پنجوں سے بچ کر نہیں جا سکے گی، نہیں جا سکے گی. خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئی. مجھے پتا تھا سندباد کہ تم یہی کہیں ہو، پھر بھی تمہیں ڈھونڈنے میں اتنی دیر ہو گئی. اگر شاہ عمری نے اس جگہ کی طرف نشاندہی نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں تمہیں ڈھونڈنے میں کتنی صدیاں بیت جاتی. مجھے یقین تھا زکالہ کہ خدا کسی نہ کسی کو میری مدد کے لیے ضرور بھیجے گا. خدا کا شکر ہے کہ تم آ گئی. میں نہیں سندباد، یوں سمجھو کہ تمہاری نیکیاں
तुम्हारी मदद को यहाँ पहुँची है। चलो मैं अब तुम्हें यहाँ से ऊपर ले चलती हूँ। ज़काला, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। जमीन के अंदर तो मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मुझे किसी ने जिंदा कब्र में दफन कर दिया हो। और अब जमीन से निकलकर कैसा लग रहा है? जमीन से निकलकर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक बार फिर से पैदा हुआ हूँ, और इस बार मेरी माँ ये जमीन है। जमीन तो माँ ही होती है ना सिंदबाद, जो सबकी परवरिश करती है। अरे हाँ ज़काला, आसिफ, कहकशां, अलनासिर, ये सब कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। अब तुम्हारी रिहाई के साथ साथ शहजादी तस्वीर की भी रिहाई होने वाली है। इसी सिलसिले में आसिफ और कहकशां जजीरा खयाबान गए हुए हैं। क्या शहजादी तस्वीर भी आजाद होने वाली है? वाह ज़काला, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। वाह। सिंदबाद, सिंदबाद, अरे वाह, ये तो वाकई सिंदबाद है। जिब्रालू, जिब्रालू, ये तो वाकई कमाल हो गया। वो हिरन शायद आपका ही पता बताने के लिए दौड़ाते दौड़ाते हमें यहाँ तक ले आया। ये सब तो खुदा की कुदरत है। हमें खुशी है कि आप आजाद हो गए। ये खबर सुनकर सरदार बहुत खुश हो जाता, मगर वो तो बहुत दुखी है। क्यों? क्या हुआ सरदार को? सरदार को कुछ नहीं हुआ। हुआ सरदार की बेटी। क्या हुआ ज़रनिगार को? वो चकमाक जिन उसे उठाकर ले गया। क्या? हाँ सिंदबाद, जालिम चकमाक मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को उठाकर ले गया। सरेआम मेरी इज्जत नीलाम हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका सिंदबाद। मैं कुछ नहीं कर सका। जब कोई ताकत के नशे में बेलगाम हो जाता है और अपने आप को खुदा समझने लगता है, तो समझ लो कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसकी जिंदगी के दिन गिनती के रह गए हैं। हमने अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए कई दफा जान लड़ा दी, मगर इस बेलगाम जिन को काबू न कर सके। आखिर ये शरीफ इंसानों को शराफत से रहने का हक क्यों नहीं देते? हक मांगने से नहीं मिलता, जालिमों के पंजों से अपना हक छीन लेना पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूँ सिंदबाद? चकमाक ने मेरी बेटी को उठाकर जो मेरी ताकत थी मेरे पर ही काट दिए हैं। सरदार सिंगारू, जालिम से अगर जीतना है, अपना हक छीनना है, तो लड़ना जरूरी होता है। और लड़ने के लिए सिर्फ ताकत और हथियार जरूरी नहीं होते। जंग जीती जाती है हिम्मत और हौसले से। और फिर सिंदबाद तुम्हारे साथ है, ज़काला की तिलिस्मी ताकतें तुम्हारे साथ हैं,
तुम अपने आप को कमजोर ना समझो सरदार सिंगारू। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये जंग इंसानियत और शैतानियत की है, नेकी और बदी की है। और कुदरत का उसूल है कि नेकी बदी की हर जंग में फतह नेकी की होती है। शैतानी कव्वतों का मुंह आखिर काला होकर रहता है। मैंने इस जंग में सिंबाद के साथ चकमाक का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ तुम्हारी इजाजत और दुआओं की जरूरत है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वो ना हो यही जजीरा खयाबान है। जजीरा तो खूबसूरत और आबाद लगता है। शहजादी तस्वीर से पहले मालूम तो कर लूं कि वाकई जजीरे खयाबान है या कोई और जजीरा। शहजादी तस्वीर हाजिर हो, जाहिर हो। हुक्म आका आसिफ। अब सिर्फ एक लफ्ज में बताओ, क्या यही जजीरा खयाबान है? हाँ। क्या यहाँ आबादी है, बाजार है? हाँ। शहजादी तस्वीर, तुम्हें हैरत होगी कि बाजार को क्यों पूछ रही है। असल में एक ही लिबास को पहने पहने उगता गई है। इसे नए लिबास की जरूरत है ना, इसीलिए यही सवाल पूछ पूछ कर कान खा गई है कि जजीरा खयाबान में बाजार है ना, नए कपड़े मिलेंगे ना। शुक्रिया शहजादी तस्वीर, तुम जा सकती हो। अब हमें खयाबान के बाजार में जाना होगा। ढेर सारे कपड़े खरीदूंगी खयाबान के बाजार से। वहाँ मिल जाएगा। अरे अब हो गई खरीदारी या नहीं? हाँ आसिफ। खरीदारी तो हो चुकी, अब जिस काम के लिए आए हैं वो काम भी जल्द से जल्द कर लें। हाँ हाँ, हम तो आए ही हैं खामोश गुलाम को तलाश करने। मगर इस जजीरे में हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? सुनो सुनो सुनो, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आप लोग आतिशबाज से आग का खेल देखने जमा हुए हैं। मगर आग से खेलना बच्चों का खेल नहीं है। आज ये आतिशबाज यानी कि मैं फिर आपको आग का खेल दिखाने आया हूं। मगर बच्चे इस खेल को खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जान भी जाने का अंदेशा है। तो भाइयों, ये मर्दों का खेल है। जिसे अपनी मर्दानगी पर नाज हो, बहादुरी पर फख्र हो, उसे मेरी ये ललकार है। इस आग की पुकार है कि वो आगे आए और मेरी तरह आग का ये तमाशा दिखाए। ये आतिशबाज उसका गुलाम हो जाएगा। मगर आतिशबाज, पहले तमाशा तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि तुम कौन सा अजीबोगरीब तमाशा दिखाना चाहते हो। ये महज आतिशबाजी नहीं, जिंदगी की बाजी है। बच्चे अपने बाप का हाथ थामकर, बड़े अपना दिल, अपना जिगर थामकर देखें। सर्दियों में आपने लोगों को आग से हाथ तापते हुए देखा होगा, मगर किसी को हाथ जलाते हुए नहीं देखा होगा। अब देखिए खतरनाक तमाशा। अरे अरे, ये क्या? हाथ जल जाएगा। आग बुझाओ, आग। है कोई नौजवान, पहलवान, सख्त जान जो मेरी तरह करतब ये कमाल दिखा सके, मैं उसके साथ शर्त लगाने को तैयार हूं।
जो मेरी तरह इस रात का ये तमाशा दिखा देगा, मैं उसे 10,000 दिनार नकद इनाम में दूंगा। अगर शर्त लगाने वाला हार गया तो हारने वाले को मैं जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना लेता हूं। तुम बड़े बहादुर लगते हो। बोलो, लगाओगे शर्त? ना बाबा ना, अगर मेरे हाथ में आग लगा दी तो मैं अपने हाथ से हाथ धो बैठूंगा। हाँ, मैं तो तुम्हें बड़ा बहादुर समझता था, मगर तुम तो बुज़दिल निकले। आग से यूं डरते हो जैसे गोश्त पोस्ट के नहीं, मोम के बने हो। हाँ हाँ, मैं तो मोम का बना हूं, मोम का। चलो हटो, हटो। चलो, बहुत देख लिया तमाशा, हम भी तूतन के साथ चलते हैं। चलो। गुलाम ही गुलाम है। खरीदना चाहो तो बोली लगाओ। आओ आओ, देखो, आजमा के देखो, एक से एक मजबूत कोई पहलवान है तो कोई चट्टान है। आओ खरीदार, आगे बढ़ो, गुलामों का मुआयना करो। देखिए और पसंद कीजिए, ऐसे गुलाम किसी और सौदागर के पास नहीं मिलेंगे। सुनो सौदागर, गुलामों का सौदा करने आए हो? कितने गुलाम चाहिए? बस एक। सिर्फ एक? अरे एक गुलाम का सौदा भी कोई सौदा हुआ? अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा हुआ। अरे कम से कम 10-5 की बात होती तो सौदा करने का मजा आता। मायूस क्यों होते हो? हम मुंह मांगी कीमत देंगे। क्या कहा? मुंह मांगी कीमत दोगे? अरे तो भाई खड़े क्यों हो? देखो देखो, पसंद करो, एक से बढ़कर एक गुलाम हाजिर हैं। हमें एक खास किस्म का गुलाम चाहिए। कैसा चाहिए? अरबी चाहिए या अजमी चाहिए या हबशी जैसा गुलाम चाहिए? अरे जैसा चाहिए वैसा ही मिलेगा। हमें ऐसा गुलाम चाहिए जिसके मुंह में जबान ना हो। बेजुबान गुलाम यानी कि गुंगा? जी हाँ, खामोश गुलाम। तुम्हारे पास हो तो सौदा अभी हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, मैं तो छान फटक कर अच्छे से अच्छा माल तलाश करके लाता हूँ। लूले लंगड़े, गूंगे बहरे और बूढ़े खुसड़ गुलाम मैं नहीं बेचता। अगर उम्दा माल चाहिए तो बात करो। मगर हमें तो खामोश गुलाम की ही तलाश है। कहकशां, इनमें तो कोई भी खामोश गुलाम नहीं है। खामोश गुलाम ही चाहिए तो फिर आप यूं कीजिए कि गुलामों के सबसे बड़े सौदागर के पास चले जाइए। वही आपको लूले लंगड़े, गूंगे बहरे, हर किस्म के सस्ते महंगे गुलाम फराहम कर सकता है। कौन है वो सौदागर? वही जो आग का खेल दिखाकर आजाद इंसानों को गुलाम बनाने के लिए जाल फेंकता है। वो आतिशबाज? हाँ वही। अरे ये तरकीब हमें पहले क्यों नहीं सूझी? चलो जल्दी वहीं वापस। हाँ चलो, हाँ, चलो चलो, चलो चलो। लाल वाला दे दो।
जरा सुनिए भाई साहब, कहिए क्या बात है? अभी कुछ देर पहले यहाँ एक आतिशबाज तमाशा दिखा रहा था, वो कहाँ गया? आज तो 10,000 की लालच में आकर उसके जाल में 2 आदमी फंस गए और उन्हें वो गुलाम बनाकर चलता बना। तो फिर अब वो कहाँ मिलेगा? शैतान का भी पता पूछते हो? गली गली में बदनाम है। वो उस तरफ जाकर किसी से भी पूछ लो, पता चल जाएगा। चलो।